Hello, Assalamu alaikum students. I hope you're doing well. Last time we worked on loops, all those four loops, three loops, sorry, repeat until, for loop, and do while and while. So now what we are going to do, we just have to learn some built-in functions and let's see वो हमारे पास built-in functions कौन से हैं. Also you have to open the document shared over there ताकि आपका जो काम है वो मैं इस डॉक्यूमेंट पे भी देख लूँ. If you have any problem while sharing or opening this document तो फिर so far आप chat के अंदर मुझे answers जो है वो देंगे. ओके सो लेट्स सी के हमारे पास कौन से बिल्ट इन फंक्शंस हैं. सो टुडे द टॉपिक इज बिल्ट इन फंक्शंस. वी लर्न दोज बिल्ट इन फंक्शंस बिकॉज दीज आर रेलिवेंट टू सूडो कोड्स. Pseudo codes में भी यूज होते हैं. They'll also give you questions like this where we have to perform these type of questions. Okay, so the very I hope my screen is shared with you, and here we are starting our first built-in function, and that is length function. So my very first question is length function, and ये लेंथ का फंक्शन जो है इट इज़ बेसिकली यूज टू चेक द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग. तो देखते हैं कि किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे. सो यू हैव टू राइट LENGTH लेंथ एंड इन साइड इट यू हैव द डाटा. फॉर एग्जांपल माय डाटा इज कंप्यूटर साइंस. सो what this function will do, it will basically find the length, means the number of characters in computer science. ठीक है, अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन को देखता हूँ, so what it will do, it will basically find the number of characters, calculate the number of characters in a string. So what will be the answer of it? Any ideas? अगर मैं लेंथ का फंक्शन इस पे अप्लाई करता हूँ, so what will be the answer? How many number of characters are there in it, in this whole string? You don't have to consider double quotations because double quotations तो हमारे that should be, your string should be enclosed in double quotations. Okay, so my answer is 16. Yes, because you also have to count space in it. So because computer or science में space है, space भी include करेंगे, so it will be 16. So this is our very first built-in function. Okay, my second built-in function is substring. ओके, सब स्ट्रिंग क्या करती है? आपके पास एक स्ट्रिंग है, सो इट विल बेसिकली एक्सट्रैक्ट द सब स्ट्रिंग फ्रॉम दैट. ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ, इट्स सब, समटाइम्स इसको SUBSTR भी लिखते हैं, और समटाइम्स हम इसको सब स्ट्रिंग भी लिखते हैं, तो आपको दोनों में ये मिलेगा. एंड फॉर एग्जांपल माय देयर इज अ स्ट्रिंग माय कंप्यूटर. इसके लिए मोस्टली मिड का फंक्शन भी यूज होता है. ओके, सो आई एम राइटिंग मिड फंक्शन देयर इंस्टेड ऑफ सब स्ट्रिंग. फॉर एग्जांपल, okay, so now it has three parameters. पहला parameter is the data. For example, that is computer. Then there is position. For example, my position is 4, and this is the length. Okay, अब आप इसके अंदर देखो. First of all, this is the name of my function which is mid. This is the data, right? This is the position. This 4 is the position, while this 3 is the length. So here, 4 is the position and 3 is the length. अब इसका आंसर कैसे एक्सट्रैक्ट होगा? आंसर ऐसे एक्सट्रैक्ट होगा कि आपने फोर्थ पोजीशन पे जाना है, एंड माय फोर्थ पोजीशन इज पी, राइट? सो माय फोर्थ पोजीशन इज पी. Now we have to extract three characters from that position, including the position. So PUT. Now my answer is put.
PUT. Okay. So another question for you. What is the question for you? You have to answer it. For example, my function is met. ओके गाइस, ये आपने ना अपने अपने इस टैब में जाके यू हैव टू राइट द आंसर्स जब मैं आपको कहूँगा. डोंट राइट इन माय टैब. ओके, सो फॉर एग्जांपल दिस इज माय मिड फंक्शन और माय डाटा इज दिस एंड माय पोजीशन इज 10. माय लेंथ इज 4. व्हाट वुड बी द आंसर? आपने मुझे आंसर चैट में बताना है. इसका आंसर क्या होगा? ओके नाउ. ओके, माय आंसर इज मेन. आपने मेन क्यों आंसर बताया? बिकॉज आप 10th पोजीशन पर गए एंड दैट वाज एम एंड यू हैव टू एक्सट्रैक्ट 4 कैरेक्टर्स फ्रॉम दैट पोजीशन, सो इट विल बी मेन एंड यू हैव टू राइट योर आंसर इन डबल कोटेशंस because it's a string. If it's a string or a character, you have to write your answer in double quotation or single quotation. Okay, now my next function is int function. अब ये int function क्या करता है? It basically round down the value. अब राउंडिंग डाउन कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल इंट एंड ब्रैकेट में मैंने लिखा है 98.782. यू ऑल्सो हैव टू राउंड डाउन, तो मेरा आंसर होगा 98. आपने ये नहीं देखना कि पॉइंट के आगे कितनी बड़ी वैल्यू है छोटी वैल्यू, जस्ट हैव टू राउंड डाउन, सो माय आंसर विल बी 98. ठीक है, सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. इंट एंड दैट विल बी 89.9999 ब्रैकेट क्लोज. व्हाट वुड बी द आंसर? हाँ जी, बताएं जल्दी से. You also have to, every time you have to round down. You people are rounding off. No, you don't have to round off. You have to round down. आप इन शॉर्ट अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमारे पास जो 89 के बाद पॉइंट्स के बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, यू जस्ट हैव टू इग्नोर इट. ठीक है, तो मेरे पास आंसर 89 आएगा. सो इंट मीन्स राउंडिंग डाउन, नॉट राउंड ऑफ. अगर आपने राउंड ऑफ का फंक्शन लेना है, सो दैट इज राउंड. और अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख देता हूँ, राउंड एंड ब्रैकेट में देर इज अ वैल्यू लाइक दिस, तो अब इसका आंसर हमारे पास आएगा 90. ठीक है, तो मेरे पास आंसर इसका आएगा 90. बिकॉज अब राउंड डाउन हो रहा है. ओके, अभी आपने मुझे इसका आंसर बताना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस फंक्शन. ऑल द फंक्शन शुड बी रिटन इन कैप्स और इट्स 87.25. इसका आंसर क्या होगा? 87, या बिकॉज यू आर राउंडिंग इट डाउन. राउंड डाउन कर रहे हैं आप, सो नॉट राउंड डाउन, राउंड ऑफ कर रहे हैं. सो माई आंसर इज 87. अब ये देखें, जो आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज आएंगी वो आपने डबल कोटेशंस में नहीं लिखनी. ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट मैटर करती हैं. ओके, नाउ आई हैव द नेक्स्ट फंक्शन एंड दिस इज, आपने इंटीजर भी कर लिया ये. हाँ, डिव एंड मॉड. यस, तो ये डिव मॉड हमने पहले भी किए थे. ठीक है, अब डिव मॉड को दो तरह से आप लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग 30 डिव 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है दैट आई एम राइटिंग डिव इनटू 30, 2. बात एक ही है. ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? यू हैव टू प्लेस 30 इनसाइड 2 आउटसाइड 2, 15 30. तो जो आपके पास क्वोशंट आता है दैट इज द आंसर.
ठीक है, और इसका आंसर भी 15 ही रहेगा, बिकॉज दो बोथ आर सेम क्वेश्चंस। देन अगेन आपका इसी तरह का फंक्शन है, दैट इज मॉड। मॉड में आपने ऑलवेज रिमाइंडर लेना होता है। तो रिमाइंडर में आपके पास क्या वैल्यू आएगी? फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस, 30 मॉड 2, सो मीन्स आप 30 अंदर रखते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 15 ज़ा 30 एंड रिमाइंडर इज 0। सो माई रिमाइंडर इज 0, आई राइट 0 देर। तो देखें सेम क्वेश्चंस हैं, बीच में हमने फंक्शन चेंज किया। 30 डिव 2 का आंसर 15 आया, एंड 30 मॉड 2 का आंसर 0 आया। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो राइट दिस क्वेश्चन लाइक दिस। अगर आप ऐसे लिखते हो मॉड एंड ब्रैकेट के अंदर 30 2 लिखते हैं, सो इट विल बी सेम। तो मेरे पास फिर आंसर 15 ही आएगा। फिफ्थ सॉरी 0 आएगा। आई होप यू गॉट दिस थिंग। नहीं नहीं, ये जस्ट आंसर के लिए मैंने कॉलन जस्ट आंसर के लिए लगाया है। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको ये लिख दूं तो इट इज़ फाइन कि इसका आंसर ये है। और अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूज कर रही है, सो इट्स लाइक दिस। ठीक है, और जैसे हम ऊपर वाले क्वेश्चन कह रहे थे, तो ये उस तरह से 30 div 2, यस ठीक है। और इसके बाद ये इसका आंसर 0 आ रहा है, तो ओके इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, आंसर इज 0, एंड इसका आंसर इज ऑल्सो 0। सो आई होप यू गॉट दिस थिंग। तो वो आपसे वैसे बिल्ट इन फंक्शंस पूछेंगे, एंड जस्ट यू हैव टू राइट द आंसर्स लाइक दिस। ओके ओके गाइस, सो वी आर डन विद ऑल दोज लूप्स। अब वो देखें, हम लूप्स यूज करेंगे while storing the values. We'll also use loops to take the input from the user. हमने स्टार्टिंग एंडिंग नंबर के क्वेश्चंस किए हैं, हमने प्रिंटिंग के क्वेश्चंस किए हैं। अभी हम जो पिछले सारे लूप्स हैं उनको मिक्स करके यूज करते हैं, जस्ट टू सी दैट हाउ मल्टीपल लूप्स वर्क एट द सेम टाइम। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं दैट यू हैव टू इनपुट 5 पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम द यूजर, तो फिर हम रिपीट को भी यूज करेंगे, फिर हम फॉर को भी यूज करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू और अप्लाई मल्टीपल लूप्स इन द सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप ये तो बहुत इजी था, ये बिल्ट इन फंक्शंस ये इसी तरह से हमारे पास एग्जाम्स में आते हैं। ओके नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेकिन अभी भी मुझे बताएं अगर इसमें कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो इन दीज बिल्ट इन फंक्शंस। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन दीज बिल्ट इन फंक्शंस लेट मी नो। आई होप आपको सारे नज़र आ रहे होंगे। ओके गाइस, नाउ जस्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आई होप यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देयर। अच्छा, नाउ माय क्वेश्चन इज, वी आर बेसिकली यूजिंग टू लूप्स एट द सेम टाइम। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही हिंट दे देता हूँ दैट वी आर यूजिंग फॉर टू नेक्स्ट एंड रिपीट until लूप एट द सेम टाइम। ठीक है, और कैसे परफॉर्म, क्वेश्चन मेरा क्या है? माय क्वेश्चन इज, राइट ए सूडो कोड टू इनपुट 5 पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम द यूजर, 5 पॉजिटिव नंबर्स from the user by using both of these loops. Now listen, what it will do, for example, I am entering 6, ये मेरा फर्स्ट पॉजिटिव होगा। आई एम एंटरिंग -9, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, अभी भी मेरा सो फॉर फर्स्ट एक ही पॉजिटिव नंबर है। 7 मेरे पास 2 पॉजिटिव हो गए, 4 मेरे पास 3 पॉजिटिव हो गए। मैंने -98 इनपुट किया, उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, सो फॉर आई हैव 3 पॉजिटिव नंबर्स। आई एम एंटरिंग -76, इट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग दैट। I'm entering 76, it is accepting that because it's a positive number. So far मेरे पास 4 पॉजिटिव नंबर्स हो गए। Now I'm entering 21, तो मेरे पास 5 पॉजिटिव नंबर्स हो गए हैं। Now it will exit, अब वो मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं मांगेगा। यू हैव टू राइट द सूडो कोड इन योर ओन विंडो। और अगर किसी की ये विंडो यहाँ पे नहीं बनी हुई है, यू जस्ट हैव टू टेल मी एंड आई विल जस्ट नेम दैट स्टूडेंट देयर। आई थिंक यहाँ पर नेहान की विंडो नहीं है, आई एम क्रिएटिंग दैट देयर। बाकी सारे ये क्वेश्चन करें अपनी अपनी विंडो में।
ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, और किसकी विंडो यहाँ पे नहीं बनी हुई? देयर इज नूर फातिमा एंड नूरुल ईमान. Noods. Okay, so this is Noor, and now I am creating the window for नूरुल ईमान. ओके, बाकी सारे अपना क्वेश्चन वहां पर करेंगे. और अगर किसी का ईमेल एड्रेस नहीं इनपुट हुआ हुआ, यू आल्सो हैव टू टेल मी. एंड इफ यू आर having any sort of difficulty writing the answers there, you can just send it in the chat. Okay, Bira. For example, if you are facing any type of difficulty, तो मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ. Just click on the link and you will be in this document. Okay, I sent you the link. Okay, so what was my question? This was my question. Okay, I hope the question is there in front of you. Noor. The question is, write a pseudocode to input five positive numbers from the user. This is the question. Bakir, I think you are also not there. Okay, I have to create the copy for you. I think Zara's copy is also not there. Okay, right. Okay, so I just got the very first answer from Shahir. Okay, then there is क्वेश्चन नंबर वन वाली विंडो में लिखना है सबने, सो दैट आई कैन गेट द आंसर एट द वेरी टॉप. वो इज ही रयान, वेल डन. Okay, guys, I'm giving you 2 more minutes and then I'll write the answer there, and then we'll carry on with the next question.
Okay, guys, so the answer is this. Like Shahir has written the answer right, and many of you. Okay, so the question was we have to input five positive numbers from the user. तब देखिए इन्होंने क्या किया है that they have just written the loop there for count 1 to 5 because हमने 5 numbers ही input करने थे and इन्होंने for loop के अंदर repeat until introduce की है. Like here it is. I'm just indenting it for the better presentation, otherwise it is totally fine. Okay, and here it is. Okay, so the question is that we have to run the loop for 5 times. Inside the for loop, there is a repeat until loop. ओके वाई इट इज देखिए आपका काउंट 1 से 2 तभी होगा जब हम पॉजिटिव नंबर इनपुट करेंगे. वाई इज इट सो बिकॉज देखिए आप रिपीट के अंदर आते हैं इट इज आस्किंग यू टू इनपुट अ पॉजिटिव नंबर एंड फॉर एग्जांपल यू हैव एंटर्ड -5 देयर. -5 इज ग्रेटर देन 0. नो इट इज नॉट. तो मीन्स आप नेक्स्ट पे नहीं जा सकते. इट विल अगेन आस्क यू टू एंटर अ पॉजिटिव नंबर. मीन्स आप इस ट्रैप में तब तक हैं व्हेन जब तक आप पॉजिटिव नंबर नहीं इनपुट कर देते. So now you are entering, for example, -59. -59 is greater than 0. No. अभी count 1 ही रहेगा. You are again entering a positive number and that is now 56. 56 is greater than 0. That will be accepted और आपका count 1 से 2 हो जाएगा. Again you are in this trap. Now you are in this trap for the second time और इस trap से आप बाहर कब जाएंगे जब तक आप पॉजिटिव नंबर सेकंड इनपुट नहीं करते. ठीक है. सो you'll keep on trying एंड जब तक आपका पॉजिटिव नंबर इनपुट नहीं हो जाता तब तक हम कॉन्टिन्यूसली यूजर को यही कहेंगे दैट यू हैव टू इनपुट अ पॉजिटिव नंबर. आई होप यू गॉट इट. स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन सो लेट मी नो. कोई भी कंफ्यूजन है तो आपने मुझे बतानी है. आई विल जस्ट हेल्प यू आउट सॉल्विंग दैट क्वेश्चन. ओके गाइस यू जस्ट हैव टू गिव मी योर फीडबैक. Otherwise we are just moving into the next question. Okay, now I have a question relevant to this, and that is write a pseudocode to input five three-digit numbers from the user. Five three-digit numbers from the user. Write a pseudocode to input five three-digit numbers from the user. ओके सो दिस इज द क्वेश्चन. फाइव थ्री डिजिट नंबर्स का मतलब ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल 88 इनपुट करता हूँ उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा. 777 को एक्सेप्ट कर लेगा. 432 को कर लेगा. सो फॉर आई हैव टू थ्री डिजिट नंबर्स. 55 को नहीं एक्सेप्ट करेगा. 654 को एक्सेप्ट कर लेगा. 444 को एक्सेप्ट कर लेगा. सो 1 2 3 4 एंड 2 2 2 को एक्सेप्ट कर लेगा. नाउ इट विल एग्जिट बिकॉज इसने 88 नहीं एक्सेप्ट किया था. 55 नहीं एक्सेप्ट किया था लेकिन बाकी सारे थ्री डिजिट नंबर्स को एक्सेप्ट कर लिया था. सो नाउ यू हैव टू राइट द आंसर इन द डॉक्यूमेंट. अदरवाइज आपने अपना आंसर लिखना है इन द चैट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एक्सेसिंग दिस डॉक्यूमेंट. Baki, you are not writing the answers. Any problem? Abira too. Noor also. Nehan is there. Okay. Okay, Rayan, well done. Michelle is not there in the document. Mustafa is not there. Ellie is there but not completed the task. Okay, Noor, well done. Noor Fatma. Okay, Musa, going good. Then there is Mariam attempting it. Okay.
Aad is absent today, and here Shahir is. Okay, Shahir, you have not changed the statement there. Just review it. Okay, guys. So now you have to verify your answers there, and that is like this. Basically, we just have to declare two variables there, और वो कौन से variable हैं? First variable is the count variable and the second variable is number. ठीक है, क्योंकि हमने यूजर से नंबर इनपुट करना है, दोनों की डाटा टाइप है इंटीजर. So I'm writing it over there. Now I have to run the loop for 5 times. So it will be like for count 1 to 5, because मैंने 5 numbers यूजर से लेने थे, but that should be 3 digit numbers. तो what I have to do, I just have to write repeat loop there, and now I have to write print enter a 3 digit number. 3 digit नंबर. और इसकी अभी हम वर्किंग को भी देखते हैं कैसे होगा. 3 digit नंबर, डबल कोटेशन क्लोज, एंड नाउ आई हैव टू राइट इनपुट नंबर बिकॉज द वेरिएबल वाज दिस. जो मेरी कंडीशन आएगी दैट दैट शुड बी अ 3 digit नंबर, तो वो अनटिल में आएगी. राइट. और अनटिल में हमारे पास क्या आएगी? इट शुड बी अ 3 digit नंबर. तो 3 digit नंबर क्या होते हैं? ग्रेटर देन 99, and you don't have to write or, and number smaller than 1000. 1000. या सो दिस शुड बी द कंडीशन. तो इट मीन्स कि वो यहाँ से डिसाइड होगा इस जगह से कि आपका नंबर 3 digit है या नहीं है. नहीं है तो आप इसी ट्रैप में रहेंगे कंटिन्यूसली. ठीक है. एंड नाउ आई हैव टू राइट नेक्स्ट. अभी हम इसको चेक करते हैं विद अ टेस्ट डाटा कि ये वर्क किस तरह से करेगा. ठीक है. तो मैं टेबल यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ और देखते हैं कि ये प्रॉपरली हमें आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा. ओके. सो फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन चीज़ें थी: काउंट, देन देर इज नंबर. ठीक है. और व्हाट आई हैव टू डू, काउंट में मेरी जो स्टार्टिंग पोजीशन है दैट इज दिस वन. ठीक है. सो आई एम राइटिंग द वन ओवर देयर. नाउ आई एम इन दिस ट्रैप. इट इज आस्किंग मी टू इनपुट अ 3 digit नंबर. ठीक है. और मैंने नंबर लेट से इनपुट कर दिया 2345 और 2342. नाउ 2342 इज ग्रेटर देन 99, बट इट इज नॉट स्मॉलर देन 1000. सो अभी मैं नेक्स्ट पे नहीं आ रहा. इट इज आस्किंग मी अगेन टू एंटर अ 3 digit नंबर. ठीक है. और अभी फॉर एग्जांपल अब मैं इनपुट करता हूँ 222. सो माय नंबर इज 222. 222 is greater than 99. Yes, it is. It is smaller than 1000. Yes, it is. So now it will ask me to enter a second 3 digit number. क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से नेक्स्ट पे चला गया हूँ. जब मैं नेक्स्ट पे गया हूँ तो मेरी काउंट की वैल्यू 1 से क्या हो गई है? नाउ इट इज 2. ठीक है. सो 2 इज इन द रेंज. यस, इट इज इन द रेंज. नाउ आई विल राइट, they'll ask me to enter a 3 digit number and input number. और मैंने यहाँ पर इनपुट किया 333. 333 is in the range. Yes, it is in the range. Now it will ask me to input the third number. तो मेरी काउंट की वैल्यू 2 से 3 हो गई बिकॉज 2 नेक्स्ट इज 3. ठीक है. अब मेरे से थर्ड 3 digit नंबर मांग रहा है और मैं इनपुट करता हूँ 1. 1 is greater than 99. No, it is smaller than 1000. Yes, but we have to meet all those two conditions. So it will not go towards the next. ये मुझे दोबारा रिपीट में ही रख रहा है. ठीक है. And now I am entering for example 111. तो 111 is a 3 digit number. Yes, it is. तो मेरा नेक्स्ट हो जाएगा काउंट. तो काउंट विल बी नाउ 4. आई होप यू गॉट इट. तो सो फार मेरे पास 3 numbers एक्सेप्ट हो चुके हैं. सो इट विल कंटिन्यू टेकिंग द आंसर. एक स्टूडेंट ने मेरी मिस्टेक सही आइडेंटिफाई की है. मूसा इज सेइंग दैट सर यू हैव रिटन डबल कोटेशंस अराउंड नंबर. तो यस, इट इज़ अ वेरिएबल, तो हमने डबल कोटेशन रिमूव कर देनी है. ओके, यू आर राइट. सो आई होप यू गॉट दिस थिंग. लेकिन फिर भी इसमें कन्फ्यूजन है. यू जस्ट हैव टू लेट मी नो कि इसको अगर दोबारा कराना है इस टाइप के क्वेश्चन को, तो मैं दोबारा करा देता हूँ.
ओके, अभी एक क्वेश्चन आपके लिए है, एंड दैट इज, ये चलें एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराता हूँ यूजिंग द रिपीट अनटिल। और उसमें हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं, और वो हमारे पास लेंथ का फंक्शन होगा। ठीक है, एंड इट इज लाइक दिस। माय क्वेश्चन इज राइट, ओके, so it's repeat until using built-in function. My topic is repeat until using built-in function. So this is the question. Okay, and question is, no, this is the topic. This is write a pseudocode to input a name having six, five characters, having five characters. ठीक है, अगर मैं एक नेम इनपुट करता हूँ, लाइक अपना नेम इनपुट करता हूँ, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा बिकॉज माई नेम है सिक्स कैरेक्टर्स. Okay, I'm entering Ahad. It will not accept that because Ahad is four character word. I'm entering Michelle. It will not, the name of Michelle, so it will not accept that name. I'm entering Bakir, so it will accept that name. Why? Because Bakir is a five character length name. Okay, so how I'll do that? I have to use repeat until. So for the first thing is I just have to declare the name there and it should be string. ठीक है, ये तो हमारे पास पुरानी बात थी. So this is the name of the variable. It should be written like this. Now I have to use repeat until for that. So my question will be like this: repeat, enter a five character length name. Okay. So my message is print, enter a name having five characters. Having five characters in it. तो मैसेज में तो कोई रूल नहीं होता, एंड आई जस्ट हैव टू राइट इनपुट एंड इट विल बी लाइक दिस. इनपुट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, द वेरिएबल वाज नेम. अब देखिए, मैंने अनटिल में यूज करना है बिल्ट इन फंक्शन, एंड दैट इज अनटिल लेंथ इनटू नेम इज इक्वल टू फाइव. कि जब तक नेम की लेंथ फाइव नहीं हो जाती, तब तक वो कॉन्टिन्यूसली आपसे नेम एंटर करवाता रहेगा. नाउ लिसन गाइस, फॉर एग्जांपल मैं अब एक इनपुट लेता हूं. आई एम जस्ट टेस्टिंग दिस प्रोग्राम. दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सूडो कोड. ओके, इट इज आस्किंग मी टू एंटर अ नेम हैविंग फाइव कैरेक्टर्स. ठीक है, और इसका चलें टेबल ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल here there is the input, and here there is input. ओके गाइस, सो हो क्या रहा है, अभी हम रिपीट से फर्स्ट टाइम इधर आए, एंड इट इज आस्किंग मी टू एंटर अ नेम हैविंग फाइव कैरेक्टर्स. तो ये मुझे आउटपुट में यहाँ पर शो हो गया. ठीक है. ओके, और हमने कुछ इनपुट किया. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर इनपुट किया है निहान. ओके निहान, आपको नहीं इनपुट किया, आपका नेम इनपुट किया है, सो डोंट वरी. सो निहान इज देयर. नाउ व्हाट इट विल सी, इट विल सी द लेंथ of this name. So it's 6, NEHAAN, 7, sorry. 7 is equal to 5? No, the condition is not correct. So when the condition is not correct, तो फिर हम repeat पे चले जाते हैं. Now it is again asking me to enter a name having 5 characters in it. ठीक है, और अभी यहाँ पर हम input करते हैं who is there, मोहम्मद. ओके, मोहम्मद का नेम इनपुट करते हैं. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so length of this name is 9. 9 is equal to 5. No, it is not. वो मुझे दोबारा मैसेज डिस्प्ले करेगा that enter a name having 5 characters in it. ठीक है, और अभी हमने यहाँ पर नेम इनपुट किया बाकिर, एंड the length of this name is equal to 5. Yes it is. तो फिर इसके बाद मैं प्रिंट करवा सकता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल द नेम
having 5 characters is, and that is in this name. सो वो मुझे क्या प्रिंट करेगा यहाँ पर आउटपुट में, वो कहेगा द नेम हैविंग 5 characters इज 5 characters इज बाकिर. ओके, ठीक है. आई होप यू गॉट इट. स्टिल इफ यू हैव एनी क्यूरी रेलिवेंट टू दिस थिंग, लेट मी नो. आफ्टर राइटिंग द कीबोर्ड इनपुट डबल कोटेशन शुड नॉट बी यूज्ड. यस, जो आपका वेरिएबल नेम होगा ना, उधर डबल कोटेशंस नहीं होंगी. ठीक है, आपका जो मेन मैसेज होगा ना, जो प्लेन टेक्स्ट होगा, उधर डबल कोटेशंस आएंगी. ओके गाइस, यू गॉट दिस थिंग. स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम मुझे बताएं, फिर हम इसको और देखते हैं. सो दिस इज द होल वर्किंग ऑफ रिपीट अनटिल यूजिंग अ बिल्ट इन फंक्शन. हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हैं जस्ट टू प्रैक्टिस इट, के ये किस तरह से चीज़ें वर्क करेंगी. ओके गाइस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी एरेज. ओके, बिकॉज वी आर डन विद ऑल दोज 3 लूप्स, वी आर डन मैनी क्वेश्चंस ऑफ इट. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी रेलिवेंट टू एरेज. यस, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज आपके पास 15 मार्क का क्वेश्चन एंड पे आता है, और वो इसी चीज़ से रिलेटेड होता है. ओके, एन असाइनमेंट विल बी शेयर्ड विद यू, यू जस्ट हैव टू डू इट, ताकि चीज़ों का आइडिया हो जाए कि क्या क्या, किस किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं. ऑल्सो सी कि आप किस तरह से इनको रिस्पॉन्ड करें. ओके गाइस, दैट्स इट.